my privilege and honor to invite KCC Chairman Richa Agarwal, Sharmila Vishwasji, I can't see Sharmila ji here, Amrita ji Nevar, Yuvragi Rathore, and Usha ji Jhunjhunwala to join us for the lamp lighting. I request Ushmita, Head Curator for Imami Art, and I also request Anuja to join us for the lighting of the lamp. Please. Thank you, everyone. Thank you, all my friends at KCC. Thank you for joining us. Good evening, Ram Ram. A very warm welcome to everyone here at Kolkata Center for Creativity. Kolkata Center for Creativity is a multidisciplinary hub of art and culture. KCC is a vibrant center for creativity, fostering a blend of diverse artistic practices, and it is a unit of Anamika Kala Sangam Trust. We are supported by Imami Group. Led by very inspiring chairperson Richa Agarwal, KCC is committed to programming that is both socially responsible and culturally enriching. On this note, it is my privilege and honor to invite our chairperson, Ms. Richa Agarwal, to the stage to share a few words about KCC, its mission, its vision, and all about the programs. नमस्ते एवरीबॉडी राम राम हमारे घर में राम राम की माला जपी जा रही है दादी जी ने स्टार्ट किया था शी यूज्ड टू कीप सेइंग कि कितने लोग के हाय हाय मचा के रखा हो तो हमारे यहाँ राम राम ही बोला जाता है तो मोर देन हैप्पी रियली थ्रिल्ड कि आप सब आए हमारे यहाँ आज केसीसी जैसे प्रमिना ने कहा था इज़ एन इनिशिएटिव बाय द इमामी फैमिली अग्रवाल जी एंड गोयनका जी मेरे फादर्स इन लॉ एंड ऐसे फादर्स इन लॉ क्योंकि आज तक हम लोग उन दोनों को अलग समझे ही नहीं हैं हमारे लिए दोनों एक ही हैं एंड जब इमामी थोड़ी बड़ी हो गई थी और कुछ पापा का ही वॉज रियली कीन कि द सिटी हैज़ गिवन अस सो मच ऑफ लव द पीपल ऑफ द सिटी हैज़ गिवन अस सो मच लव सो अब टाइम है कि हमको कुछ करना चाहिए उनका इच्छा यही था टू क्रिएट अ सेफ स्पेस where people could come and share and enjoy and be themselves. The important, in our daily humdrum of life, we've all moved from who we actually are. It's, it's very surprising that sometimes when someone asks you what you want to eat, especially for the women, कि आपको खाने में क्या पसंद है यही नहीं याद रहता है सोचना पड़ता है कि हमको क्या पसंद है वी नो व्हाट आवर चिल्ड्रन लाइक वी नो व्हाट आवर हस्बैंड्स लाइक वी नो व्हाट आवर पेरेंट्स इन लॉ लाइक So we just wanted to create a space where everybody could come and be themselves for some time.
he wanted to create a space, a think tank, कि जब भी हम यहाँ आए हम कुछ माने if not anything to learn but कुछ खुशी लेके जाएं. रमझोल हमारे लिए ऐसा ही एक इनिशिएटिव है. हम सब हमारा परिवार अग्रवाल एंड गोयनका फैमिली, वी ऑल मूव फ्रॉम राजस्थान एंड कम टू बंगाल. तो हमेशा यही रखता है कि अरे वहाँ का भी यहाँ कुछ आना चाहिए. यहाँ का तो हमने सब कुछ अपना लिया, पर वहाँ का यहाँ क्या ला सकते हैं. तो आई थिंक प्रमिला की बहुत इच्छा थी कि वी शुड create a program which is a little more inclusive, which talks about the legacy from where we come. In our country, we are very particular and we very strongly believe in what our ancestors have given us, our surroundings, and their blessings is something we look for all the time. These are our roots. Over the next 2 days, you will be seeing programs, there will be dance programs, there'll be musicals, there'll be talks, and I'd really encourage everyone to hear those stories because they are inspiring. They are of people who've made a difference in their own way, and they've all taken time to be here with us, and I'm really very grateful for that. Vishaka has been teaching Ghumar to a group of absolute novice for, I think, the last 3 days. Her patience is beyond, I think, appreciation, honestly, at this time. The word Ramjhol itself, it evokes festivity and connection. We really had a lot of debate कि ये जो Ramjhol 3.0 है, जब Ramjhol नाम रखे थे, इस नाम क्या होना चाहिए? And I don't even dare to tell you what we thought otherwise. It is the sound of anklets in motion, of celebration, of togetherness. For me, it carries a lot of personal resonance. Though I belong to a Marwadi family, Rajasthan has been more than an ancestral memory. It's a living influence, a part of my identity for sure. In presenting this festival here in Kolkata, it feels like we are weaving together two worlds I cherish deeply, the vibrance of Rajasthan and the intellect, artistic spirit of Bengal. Since its inception in 2023, Kolkata's Center for Creativity has stood at the forefront of India's cultural landscape, offering a platform where art forms, traditional and contemporary, popular and academic, can meet without any hierarchy. Ramjhol embodies the ethos, bringing together folk musicians, theatre groups, storytellers, dancers, and artisans to create a shared space of creativity and learning. My apologies, we opened in 2017. 2023 was our first edition of Ramjhol. This year's edition features an eclectic lineup: the soulful indie music of Rahagir, the stirring Qawwali of Rahmate Nusrat Saab, evocative storytelling by the amazing Yuvragi Rathore, the graceful Ghumar, led by Vishaka Saraf, and a magical puppet theatre that connects us to Rajasthan's timeless oral traditions. Alongside these workshops and craft showcases ensure that our audiences can participate, learn, and take a piece of this living heritage with them. My heartfelt gratitude goes to all of our artists, collaborators, supporters, without whose passion Ramjhol couldn't be possible. Your commitment strengthens our vision of cultural dialogue and community. I stand here and take all the credit, but this really goes to my team, without whose enthusiasm, without whose support and untiring efforts, not even, literally यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल पाता. Right from my Ramadi, who's at the entrance, who greets you with the most beautiful smile, and she gives me maximum insights of what's happening within the center, honestly, to, me at my table. I really owe it to all of y'all for making every day so special. And the reason why I feel a little more strongly today is we just were creating a report within our team. We actually managed to do 800 events last year, which I think is a phenomenal number for a team my size. So it is because of each one of y'all. It is because of all of y'all who are present here. आपके बिना देखिए program करके मज़ा भी नहीं आएगा. So thank you all for being here. Please enjoy the next 2-3 days with us, and what can I say? Thank you, Pramila, for curating this beautifully.
थैंक्स ऋचा जी को है, क्योंकि वो हम में विश्वास करती हैं इसलिए हम काम कर पाते हैं, नहीं तो काम करना बहुत मुश्किल है। उनका विश्वास ही हम लोगों में ये उल्लास भरता है और तभी ये सारे काम होते हैं। Thanks to each and everyone who thought about Kolkata Center for Creativity. Thanks to Richa ji, who's doing it with so much passion, with so much belief in us. Thank you. आ तो सुरगाने सरमावे, आ तो सुरगाने सरमावे, ई पर देव रमन ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछरावण कर जावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी। एक बार फिर आप सभी को राम राम सा। कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी गर्व से प्रस्तुत कर रहे हैं केसीसी रमझोल 3.0, एक अनोखो राजस्थान, लोक कथाएं और लोक धुनें। 3 दिवसीय यह उत्सव राजस्थान की कलात्मकता, उसकी जटिलता और उसकी अनंत सुंदरता को समर्पित है। वाई रमझोल, जैसे ऋचा जी ने बोला, वाई रमझोल। रमझोल शब्द का अर्थ है पाजेब या झनकार। यह एक सिर्फ आभूषण नहीं, यह मेल मिलाप, एकजुटता और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है। जैसे नृत्य में पाजेब की झनकार, राजस्थानी संदर्भ में रमझोल का संबंध घूमर जैसे नृत्य से भी है, जहाँ घाघरे की लहर और पायल की झनकार मिलकर एक अद्भुत दृश्य और रमझोल की रचना करते हैं। और हमारे बंगाल की भावना में कहें तो होई चोई, यह एक उत्सव जो एकता, बंधन और सांस्कृतिक मिलन का जश्न है। आप सबको आमंत्रण है राजस्थान की जीवित परंपराओं से जुड़ने का, उसकी मौखिक लोक कथाओं, उसके सूफियाना संगीत और उसकी रंग बिरंगी शिल्पकला और उसकी आध्यात्मिकता से। हम आपको 3 दिवसीय रमझोल का हिस्सा बनने का आमंत्रण देते हैं, केवल दर्शक बनकर नहीं बल्कि खोजी बनकर। कहानियों की गहराई, सुरों की मिठास और सदियों की बुद्धिमत्ता को महसूस कीजिए। आइए इस रमझोल में हम सब मिलकर सुने, संजोएं और जश्न मनाएं। Thank you everyone. Now I would like to invite our keynote speaker Yuvragi Rathore from Rajasthan. Yuvragi Rathore is a dynamic and purpose-driven speaker who beautifully blends the wisdom of cultures, the power of storytelling, and the science of well-being. As an ethnographer and storyteller, she crafts compelling narratives and reconnects us with our roots, values, and personal journeys of health and healing. Please join me in welcoming Yuvragi Rathore. राम राम, गणे मान राम राम आप सभारो कि आप मने इन मंच पे आमंत्रित करियो। आशा करूँ मारी भाषा आपने थोड़ी घनी समझ आई रही वही। अगर आई रही वे तो हाथ ऊंचा कर बता दे रहा हो कि आई रही है। तो आप देखाओ, थोड़ो मुंडो घुमान अटी उठी देखाओ आपरे कने ओली दोली लारे हामी राजस्थान सिमटन अठे आई गो। इतो दूर वेस्ट टू ठेठ ईस्ट आई गो अपनो राजस्थान। झरोखा है, ढोलक है, मांगणियार है, मांडना है, तो कमी किन चीज री है।
कमी है आपणे जेड़ा निरखण वाला री जो इन चीज ने अनमोल समझे। तो रमझोल ये तो फूटरो नाम है, कई मतलब है ने। ऋचा जी एक मतलब साझो करियो, प्रमिला जी भी एक मतलब साझो करियो, मैं भी आपरे समक्ष एक मतलब साझो करूं। पर उन पहले एक बात बता दूं, जो राजस्थान रा मिनक है नी, दुनिया रे कौन सा ही कोना में पूग जावे, कोई भी खुणा में पूग जावे, वे खुदरी आपणियत मान मनवार कोनी छोड़े। आप कोई रे घरे पधारो, आपने पानी री मनवार जीमन री मनवार करी, अटे बंगाल में भी कोनी करे। और मैं तो आज भुगत भोगी हूँ, मैं पूगी गेस्ट हाउस, मैडम आप खाना खाएंगी? हाँ खाना खाएंगे, ठीक है। और अगर कोई राजस्थान रे घरा में आप उगो तो वे आपने पूछे को नहीं, जीमण तैयार है, खानो जीम ने जाजो। तो या मान मनवार आप कठे भी पूग जाओ, वह राजस्थान री जो आपणियत है, मान मनवार है, वह कठे ही को नहीं जा रही, वह जीवंत है आपने मई नहीं। क्यों? क्योंकि आपरा बडेरा साक्षात वे जीवता, तो आपा माने देख देख आपा भी सीख लियो। तो आगली पीढ़ी ने भी अगर आपने वो देवणो है तो आपने भी आ चीज जीवनी पड़ी, आपने भी करनी पड़ी। मान मनवार राम राम घणी खम्मा पधारो सा बिराजो सा, आपा नहीं करा तो आ खत्म वे जाई। My generation would be the last one, possibly, that would keep this tradition alive. The only way to keep it going forward is if we live it every single day and the children watch us doing it. मैं स्विच इन हारू करियो कि थोड़ो आपरो ध्यान अटी उठी वेगो वे तो मारी तरफ फेर आ जावे, तो बहुत कुटरी बात है। तो राजस्थान रा मिनक है नी घना अपनायत वाला वे, खुश मिजाज वे, पॉजिटिविटी भरियोड़ा वे। और हमारा दोस्त था इंजीनियरिंग कॉलेज में और एमबीए में, दूर दूर आयोड़ा, कोई महाराष्ट्र रहो, कोई साउथ रहा, कोई कलकत्ता रहा, कोई असम रहा, कोई कश्मीर रहा। तो वे मन पूछता, जो पिक्चरा में बतावे नहीं, राजस्थान में तो पानी कोनी, धोरा है, मतलब रेगिस्तान है, सूखा है, पानी नहीं है। भाई अभी आप पधारन देखो, बढ़िया मेट्रो चल रही है, बढ़िया आलीशान बंगला है, एंड सबू ज़्यादा खर्चो ही मारवाड़ी करे ब्याह शादिया में। साची बात है, कोई सोई ब्याह उठान देख लो, सबू ज़्यादा खर्चो वे बतावे कौन नहीं, पर सबू ज़्यादा खर्चा मार अपने राजस्थान वाला करे। मान मनवार बढ़िया आग लारी मनवार चोखी वेणी चाहिए। तो दे वुड आस्क मी, युवरागी, I mean, Rajasthan is such a dry state and, there's not much grows in there. So how come, you still have so many colors? मैं रंग रंगीला कपड़ा पहनती, तो आने बतानो पड़े कि भाई माने भले कहीं नहीं उगतो वे, भले धोरा वे, माना मिजाज रंगीन है, माने पैरवास हूँ, माने बोल चाल हूँ, माने हाव भाव हूँ, माना मिजाज घना रंगीन है। उदाहरण स्वरूप मैं आपने शब्दावली हूँ 2, 3, 4, 5 शब्द प्रस्तुत करूं तो आपने कितो हुड़स वेई, हुड़स यानी यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू लर्न दीज ब्यूटिफुल वर्ड्स फ्रॉम आवर वोकैबुलरी। आप रोजमर्रा री जीवन में यूज कर जो, आपरा दादी सा नानी सा आपरा यूं वार ना लई। तो रमझोल ये तो फूटरो शब्द है, झांझर पायल ने भी कहवे क्योंकि वह झम 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 करे। रमझोल इज ऑल्सो मीन्स सेलिब्रेशन दैट goes into a flurry of happiness. ब्रज भाषा में गीत है, नंद बाबा के ढोटो जायो माच गई रमझोल। नंद बाबा के बेटा जन्मा है, पूरे गोकुल में सेलिब्रेशन है, खुशी है, इतना बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल है। ऐसा नहीं लग रहा कि नंद बाबा के बेटा जन्मा है, ऐसा लग रहा है हर एक के घर में बेटा जन्मा है। तो ये तो फूटरो शब्द है रमझोल, और अटे आप सचमुच में एक रमझोल रो माहौल जचा दियो। और एक अपने भाषा में शब्द है हरक। हरक यानी कि अंदर से खुश होना, जैसे कि आप लोग हो रहे होगे अभी, इतने सुंदर कार्यक्रम में भाग लेकर, सुंदर गीत सुनकर, कहानियां सुनकर अंदर से खुशी होती है, उसे कहते हैं हरक। पहली रे जमाना में बोजाया नंदा ने घणो प्रेम करती, जब नणंद भाई सा घरे पधारता तो कहता कि अरे घना हरकता, घना राजी वेता कि नणंद भाई सा पधारिया। अबे नणंद भाई सा पधारे तो लागे जाने सिल्लाड़ी यानी कि
पत्थर की सिल्ली आ गई हो, पतो नहीं कद छाती माते आन पड़ी कद जाई। एक और આપણો ગીત है, हरख पधारो बाईसा सास रे, बाईसा ने दादी सा सीख दिरावेरा, बाईसा रो कोड घणो। इसके बहुत सारे रूपांतर है, मेरे दादी सा थोड़े अलग वर्जन में गाते हैं, घूंघटा काट के ऐसे इतना सा पीप होल बना के। तो हरख, हरख पधारो लाडली सास रे, हरख यानी खुशी से बेटी अपने ससुराल जाओ, जाओ अपना घर संभालो, और बारी बारी से आपको सीख यानी कि गुड बाय, जो सीख देना होता है, आपको बाय कहना, आपको आशीष दे के विदा करना, सीख दे रहे हैं। कौन कौन? दादी सा, दादो सा, बाबो सा। तो हमारे रिश्तेदारियां भी तो बहुत है, अंग्रेजी में एक वर्ड है आंट्स एंड अंकल, दैट्स इट। We have so many beautiful words. આપણે દાદો સા, દાદી सा, કાકો सा, કાકી सा, બાબો सा, बड़ा मामा, मामो सा, मामी सा, भुआ सा, फूफो सा, मन गिनाए जाऊं ला पर सब रिश्तेदार भेड़ा वे जाई। So that's the beauty of our language, the beauty of our culture, beauty of our tradition, that we have a name, a designated affection for each and every person that is part of the family. और एक शब्द और है अपनी भाषा में, जिनो बहुत ही फूटरो एक्सप्रेशन है, वो मुड़क। मुड़क यानी कि मुस्काना, मंद मंद मुस्काना और शर्माना। हाउ मेनी पीपल आर मैरिड हियर? प्लीज रेज योर हैंड्स। थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग। सो पीपल हु गॉट मैरिड, प्लीज लुक अप योर एल्बम, एंड इफ नॉट लुक अप योर वीडियोज, एंड इफ नॉट द पीपल हु आर अनमैरिड, गो लुक अप यूट्यूब वीडियोज ऑफ न्यूली वेड्स पग फेरे की रस्म। तो जब नया दूल्हा दुल्हन बीन बींदनी पग फेरा यानी कि शादी करके वो एक बार वापस ससुराल आते हैं, तो जो दूल्हे के मुंह पे जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो एक्सप्रेशन है मुड़कना। वो खुश भी है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा कि शादी हो गई और मेरी बींदनी साथ आ गई, और वो शर्मा भी रहा है कि सास उसकी वारना ले रही है, उसे जिमा रही है। तो ये है मुड़कना। और एक उदाहरण हमारे हाल ही में, हमारे श्रवण जी हैं जो गायों का ध्यान रखते हैं, उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया और डॉक्टर से दाता मेरे फादर इन लॉ बात करवा रहे थे। तो श्रवण जी ने, मैं बहुत दिन बाद पूछी हो कि श्रवण जी की करो कि कवरानी सा मैं जानियो, मैं तो गयो राम जी रे घरे, पण पछे मैं भंवर साने डाक साहब देखता बातचीत करता देखियो मुड़किया, वहाँ ने मुड़कता देख मैंने समझ आई गो कि मैं जी जाऊँ ला। So the interaction between my father-in-law and the doctor, and there was some smile exchanged about, okay, I'll get the medicine, but the patient from far away saw them exchanging, mild smiles, and that gave him hope that he will live. So that is the beauty of the expression, the हाव भाव and the words that we have. एक शब्द और है आपने, राजी खुशी राजी। राजी यानी बहुत खुश होना। तो कोई आपने थी मिठास है बोली में, तो कि आप राजी हो, तो आगलो कहवे आपने देखन घना राजी। तो मैं भी आप लोगों ने देखन घनी राजी हूँ आज, बहुत बहुत आभार। और राजी खुशी में भी आपा कहवा कि आप लोग अच्छे से सकुशल, राजी खुशी सकुशल, वेल बीइंग। तो कोई कहवे कि घरे पूग जाओ जद राजी खुशी रा समाचार दीजो। When you reach home, message back. You know how these days children don't even bother to message back. I have teenagers at home कि mama I have reached. And अपन मामा माँ mothers only कड़पे, they get stressed कि मेरा बच्चा बेचारा बच्चा पहुँचा नहीं पहुँचा। वो तो भलो वे आजकल WhatsApp रो, फोन रो, टेक्नोलॉजी रो घणो आसरो है। और एक शब्द और है जो मने बहुत लागे फूटरो, कोड, लाड और कोड। ये बार गीत भी गावेला, बाईसा लड़का घना, बाईसा फूट रगना, बाईसा ने के वो मती, बाईसा लड़का घना। लाड यानी कि प्यार जताना। और हमारे जो बाईसा हैं बड़े लाडले हैं, तो उनको कुछ कहो मत, बिकॉज शी इज़ अ प्रिंसेस ऑफ द हाउस, उनकी 100 गलतियाँ माफ़ है। और कोड, लाड कोड साथ में भी काम में लिया जाता है, और कोड का अपने आप में मतलब है चाव।
ઈચ્છા મને लहंगा सूट रो कोड घणो कि मुझे लहंगा सूट पहनने की चाव बहुत है, बहुत मज़ा आता है मुझे पहनने का। एक बहुत फनी उदाहरण है, किसी ने बोला कोई जवाई को कि लड़के को कि तू घड़ी घड़ी तने सासरा जावनो कोड घणो क्यों, रोज रोज जुआरी मिले। जुआरी यानी कि वो जो सीख में पैसे मिलते हैं उसमें आपको बड़ा मज़ा आता है कि हाँ तुम ना घड़ी घड़ी ससुराल क्यों जाते हो। ये किसी को ऐसे ताना कस रहे हैं, उसकी टांग खिंचाई हो रही है कि तुम घड़ी घड़ी ससुराल क्यों जाते हो, क्या तुम्हें रोज रोज जुआरी मिलती है इसलिए भाग भाग के जाते हो। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि अपनी भाषा, આપણો પહેરવાસ, આપણો ખાણપાણ, આપણા ગીત, આપણી तीज त्योहार अगर आपा नहीं मनावा तो आपने पछे खत्म वे जाए। वील बी द डायनासोर दैट विल बी रिमेंबर्ड in history books. Oh, that was in the year 2025, 2026, an era of people from Rajasthan, irrespective of where they lived, they spoke their language, they lived their culture, they celebrated their festivals, they sang the songs, but now that's only available on YouTube. It's vintage. We don't want to be vintage. We want to be living it every single day. तो अपनी कोशिश रमझोल 3.0 उन विंटेज ना बना, उन वास्ते एक बहुत बड़ो प्रयास है। तो इन वास्ते एक बड़ी जोरदार तालियां